लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को भाजपा और उनके सहयोगी दल के साइड से जो धमकियां मिल रही है, जो आपत्तिजनक शब्द उनके खिलाफ प्रयोग किए जा रहे हैं, तो उस पर कांग्रेस का क्या कहना है? Since Rahul Gandhi ji started his political career, the day one onwards, BJP and their entire ecosystem had been targeting Rahul Gandhi in a very, very low level. We are actually facing BJP's low level attack against Rahul Gandhi for the last so many years. But now that issue turned in a different level. Last 2 weeks, what we are witnessing is totally painful for us. Because I am getting a call from all over India Congress workers. They're quite emotional. They're asking what is going to be happen to Rahul Gandhi. That is what they are asking. One leader is telling that those who are ready to cut the tongue of Rahul Gandhi will give 11 lakhs. One another responsible leader is telling, BJP leader is telling, Rahul Gandhi has to face the same fate of Indira Gandhi. Another leader is telling he is the number one terrorist. That was not only leader, he is a minister in Modi's cabinet. Actually, we are waited for a response from the Honorable Prime Minister and the BJP leadership. We expected that in politics, we will fight for politics, we will have an argument, but never personally life threat call. We didn't experience that at all. That is why we expected a responsible party who is ruling this country will control these things. They will come with an apology. But so far nothing happened. We had a very bad experience. The country had witnessed two at most saddest incidents with Indira ji and Rajiv ji. Now that is why our cadre is totally worried about that. What is the plan of these people? We are believing that there is a conspiracy going on. There is a big conspiracy going on to finish Rahul Gandhi. Because Rahul Gandhi stands for poor people. Rahul Gandhi stands for clear ideology. Rahul Gandhi stands for beyond the caste, beyond the religion, stands for the people of this country. Now BJP realizing that Rahul Gandhi is going to be the biggest threat for BJP's divide and rule policy. So they want to. That's why they have done a conspiracy. That's what our belief. Our Congress workers will not digest all these things. We, the workers of Congress, cannot digest all these things. Therefore, if the BJP is not controlling these people, whatever things is going to be happen, that is answerable by BJP only. That's all. सर, आपको क्या लगता है कि कोई मतलब कांग्रेस के साइड से कोई लीगल एक्शन अभी तक लिया गया है या आगे क्या प्लान है, इस पे क्या किया जाएगा? No, there is no need of having any planning. This is quite emotionally and spontaneous things is happening in this country. Because I told, now the people of India like Rahul Gandhi, his character, his honesty, his straightforwardness, his passion towards the poor people of this country. Now the country is actually liking Rahul Gandhi, that and Congress workers are ready to die for Rahul Gandhi. Therefore, there is no need of any call, any direction from our party. If BJP is not going to stop it, whether they think that their leader will freely walk around the country, this type of threatening by the BJP leaders, whether they think they are free to do all these things, they will watch and see. भाजपा के कई नेताओं की तरफ से, साथ ही भाजपा के कई सहयोगी दल के नेताओं की ओर से भी नेता विपक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इस पर पहले तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है, और महत्वपूर्ण सवाल ये कि हफ्ता भर बीत गया है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अब तक इस पर एक शब्द भी नहीं कहा गया। आपको क्या लगता है, उनका भी इसको समर्थन है क्या? देखिए, प्रजातंत्र में इस किस्म की बात कहना जो अप्रजातांत्रिक है, ये देश जो है अहिंसा का देश है। गांधी जी ने अहिंसा लेके आए, ये हिंसा की बात करते हैं। हिंसा का मतलब प्रजातंत्र को खतरा, देश को खतरा, देश का जाएगा, ऐसी बात बहुत निंदनीय है।
और प्रधानमंत्री जी को तुरंत इसका वो लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। भाजपा ये नफरती भाषा बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लीगल एक्शन ही लेगी, उनको जवाब लीगल एक्शन लेकर ही देगी। कांग्रेस तो जो करेगी, कांग्रेस तो अहिंसा अहिंसा में यकीन रखती है, कोई ऐसी बात कहती नहीं है भड़काने की, लेकिन मौजूदा सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये देश के लिए खतरे की घंटी है। कई भाजपा नेताओं की ओर से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। ये तक कहा गया कि जो उनकी जुबान काट के लाएगा 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपको लगता है कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं किसी के शय में हो रहा है, क्योंकि इस पर चुप्पी लगातार बीजेपी की ओर से बनी हुई है इस पूरे मुद्दे पर? ये बहुत ही निंदनीय बात है कि जो बीजेपी के नेता और उनके सहयोगी पार्टी के नेता इस तरह से हिंसा की बात करते हैं। ये देश मोहब्बत का देश है, प्रेम प्यार मोहब्बत का, लोकतंत्र का है। भारत के संविधान में सबको अपनी बात कहने का अधिकार अवश्य दिया है, लेकिन जो इस तरह से जो भड़काने की बात करते हैं, ये उन पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अभी तक मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी जी को भी बताना चाहिए चुप्पी साधने का मतलब है कि वो इनके बातों का समर्थन कर रहे हैं। उनको तुरंत जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि उनका दृष्टिकोण क्या है। क्या वो हिंसा से देश चलेगा? ये देश प्रेम प्यार मोहब्बत का देश है, अहिंसा का देश है और उसी से ये देश आगे बढ़ेगा। और ऐसी चीज़ों का जनता जो देख रही है, इनको ज़बरदस्त जो है जवाब मिलेगा। क्योंकि मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे इस पर, तो कांग्रेस क्या लीगल रास्ते से ही जाएगी और कब तक सवाल का जवाब मांगने की कोशिश की जाएगी इनसे? कांग्रेस पार्टी अपना सारा जो इस पर विचार कर रही है और अपना लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। और जहाँ तक है राजनीतिक तौर से तो हम जवाब दे ही रहे हैं और आप देखोगे कि अभी इसका जवाब हरियाणा के चुनाव में भी मिल जाएगा। बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल के नेताओं की ओर से राहुल गांधी पर कई विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इस पर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कांग्रेस का स्टैंड क्या है और अब तक इस पर, क्योंकि हफ्ता भर बीत गया है, इस तरह के बयान लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं, इस पर मोदी जी की खामोशी बरकरार है। देखो, एक बात जो बिल्कुल पक्के तौर पता चल रही है वो ये है कि ये स्पॉन्सर्ड बयान, पहले तो हमें लगता था कि ये स्पॉन्टेनियस है, अब इससे जैसे बरवा ने बयान दिए, उसके बाद बिट्टू का बयान आया, फिर एक इनका एमएलए है जो महाराष्ट्र है उसका बयान आया। सो ऐसे बयान और कंगना रनौत का जो बयान आ रहा है, तो उससे ये है कि ये बयान खुद नहीं दे रहे, ये तो मखौटे हैं। ये बाकायदा तौर बीजेपी की लीडरशिप जो है ऐसे बयान दिलवा रही है और मैं समझता हूँ ये बहुत घातक है, बहुत ख़तरनाक है। डेमोक्रेसी में ऐसा काम नहीं चलता। मोदी साहब बहुत दफ़ा बाहरले देशों में गए, उन्होंने जाकर हिंदुस्तान की और कांग्रेस की वहाँ नुक्ताचीनी भी की और बात भी की। ऐसे ही राहुल जी अगर गए हैं, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा है, कहीं नुक्ताचीनी किसी की नहीं की, अपना व्यू पॉइंट रखा है। और उस व्यू पॉइंट के साथ, क्योंकि मैं पंजाब का हूँ और सिख समुदाय के साथ जुड़ा हुआ बयान है, 99% सिख उनके बयान से सहमत हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी स्टेटमेंट के साथ सहमत हैं और जो भी राहुल जी ने बात कही है वो 100% सही है। नंबर 2, अभी बीजेपी अगर सही मायने में इनकी गवर्नमेंट ने ये बयान या इनकी पार्टी ने ना करवाया हो तो इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन अभी तक हो जाना चाहिए। देखो, एक सिटिंग मिनिस्टर राहुल जी के खिलाफ एक बयान देता है और वो बयान जो है उनको टेररिस्ट का शब्द इस्तेमाल करता है, तो अभी तक लीगल एक्शन हो जाना चाहिए था। मगर इससे ये साफ तौर नज़र आता है कि ये मखौटों से बयान दिलवाए जा रहे हैं एक हिंदुस्तान में इलेक्शंस के टाइम पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, तो इसका माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है। दे आर ट्राइंग टू टारगेट द सिक्स हु आर अराउंड 6% इन हरियाणा। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, आज सिख हरियाणा का 90% कांग्रेस के साथ, और जो बाकी 10% है वो बीजेपी के साथ कोई भी नहीं, वो कहीं बाएं दाएं हो सकता है किसी पार्टी के साथ। लीगल जहाँ तक एक्शन है, मेरा मानना है इमीडिएटली हमें मूव करना चाहिए। और मैं सहमत हूँ जो हमारे ट्रेजरर अपने माकिन साहब ने जो बात ऑलरेडी लिखती तौर पर कंप्लेंट की हुई है,
इलेक्शन कमीशन को बता रखा है। तो और इवन ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा हुआ है। अगर उसके बावजूद नहीं आता तो देन कांग्रेस विल हैव टू एजिटेट एंड वी विल इंश्योर कि ये बात हो, क्योंकि बहुत बड़ा सिक्योरिटी का रिस्क अगर हो तो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन लोगों की नहीं, इनकी पार्टी की और इस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानूंगा ये होगी। राहुल गांधी पर भाजपा और जो सहयोगी दल है उनकी जो उन्होंने आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किए, जो धमकियां उन्हें मिल रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक अकेला राहुल गांधी पूरी भाजपा पर भारी पड़ रहा है। 2024 के चुनाव 400 पार का दावा था ना, क्या हुआ उसका? वही आज श्री राहुल गांधी संसद के अंदर हो, सड़क पर हो, देश में हो, विदेश में हो, इस देश को एक रखने की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। भाजपा के एजेंडों पर, नफरत और जहर के एजेंडों पर पूरी तरह से बुलडोजर चलाने का काम श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। भाजपा की बुलडोजर नीति पर किसने बुलडोजर चलाया? सुप्रीम कोर्ट ने। संविधान बच गया। भाजपा की सिर्फ यही बौखलाहट है और ये नेता बोल नहीं रहे, इन्हें बुलवाया जा रहा है। कौन है केंद्रीय मंत्री? भाजपा का केंद्रीय मंत्री राहुल जी को आतंकी बताता है। महाराष्ट्र में इन्हीं के सहयोगी का विधायक कहता है जबान काटने पर 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। दिल्ली का इनका एक नेता है, छुटभैया सा नेता है, वो कुछ नहीं है आज, वो कहता है कि राहुल गांधी बाज आ जाओ वरना इंदिरा गांधी का हाल होगा जो उनके साथ हुआ था। ये आपकी गीदड़ भभकियों से राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। गांधी जी को गोलियों से सीना छन्नी करने वाले गोडसे थे। इसी गांधी का डीएनए खून जो है वो राहुल गांधी में है। इंदिरा गांधी जी को 40 गोलियों से छन्नी किया गया, उन्हीं इंदिरा गांधी का खून और डीएनए राहुल गांधी में है। राजीव गांधी जी को मानव बम से उड़ा दिया गया, उसी राजीव गांधी जी का खून और डीएनए राहुल गांधी में। जब राहुल गांधी तब और उनका परिवार नहीं डरा, आज क्या डराएंगे? आप एक पत्थर उछालिए, चट्टान बनकर कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल जी के साथ खड़ा है। और आप ये कहते हैं कि राहुल जी के खिलाफ क्यों है ये? क्योंकि राहुल जी इनकी जो नफरत की राजनीति है उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। हरियाणा के अंदर एक गरीब को मात्र इसलिए पीट पीट के मार दिया गया खाने और शक के आधार पर। एक युवा के सर पे गोली मार दी गई इस शक पे कि वो मुसलमान था और वो बीफ लेकर जा रहा था, पर वो एक हिंदू था और उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। महाराष्ट्र की एक ट्रेन में एक मुस्लिम बुजुर्ग को पीटा जाता है। राहुल गांधी जी सिर्फ इसी नफरत के खिलाफ आज इस भाजपा की विचारधारा के सामने खड़े होकर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिस आदमी ने बिना डरे हुए सुरक्षा की बिल्कुल चिंता किए बिना लड़ी, उन्हें यह डरा कर धमकियां देकर क्या बिगाड़ लेंगे। आज हम लोग गए थे तुगलक थाने में, FIR करा के आए हैं, सबूत देकर आए हैं। आज हम देखना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस आज देश की हर जगह, महिला कांग्रेस ने जा जाकर आज रिकॉर्ड FIR दर्ज करवाई है नेताओं के खिलाफ, सबूत भी देकर आए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कानून अपना काम करता है या नहीं करता है, वरना हमारी भी सरकारें हैं, वहां पर भी पुलिस है, वहां पर भी FIR हुई हैं। घर से घसीट कर ऐसे नेताओं को लाया जाएगा जो देश में उन्माद, हिंसा भड़काने वाली बातें कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को खतरा और डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाब नहीं होंगे आप कभी भी। देखिए, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पत्र लिखा, सारी बातों को रखा है, इस उम्मीद के साथ कि जवाब भी आएगा और कार्रवाई भी करेंगे भाजपा के शीर्ष नेता अपने नेताओं पर। बयानबाजियां रुकेंगी, वरना नहीं, आग में घी डालने का काम हो रहा है। लेकिन दुख और चिंता है कि आज अभी तक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कोई जवाब नहीं आया। ये साफ संकेत है कि ये जो कुछ भी बोला जा रहा है, हो रहा है, वो सब भाजपा के नेता अपने मर्जी से नहीं कर रहे। एक पूरी राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने के लिए पूरी तरह से सोची समझी एक एजेंडे के तहत राहुल जी को टारगेट किया जा रहा है। एक अकेला राहुल ही क्यों, राहुल गांधी ही क्यों? क्योंकि राहुल जी जो बात कर रहे हैं वो बात संविधान में कही गई और वो बात आज हम सब कर रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद सब कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ही के खिलाफ आज भाजपा का ये मंत्री, विधायक, सांसद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक अकेला राहुल गांधी इनके ऊपर, इनके नफरत के एजेंडों पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं।